This video is gonna be very interesting because this video is all about the grooming standards of men and women. Hey guys, welcome back to my channel. Sat Sri Akal, Namaskar, Adab. My name is Vinayak Madan. You're watching Do It My Way. चलिए शुरू करते हैं. Guys, if you're really interested into going to hospitality sectors, it could be aviation or the hotels, then this particular video is for you. So just wanted to give you a brief about this particular video. This video has been made with the help of my very good friend Nirja, and she is from Mumbai, and I hope you understand that how much hard work she has done, because मैं तो अपने शहर में हूँ. She has been sending me the clips every day of different makeup so that I can finalize the clip which I wanted to keep. So thank you so much. And this video has been made considering those people who are literally wanted to get into aviation or hospitality sector. So guys, if you want to learn something एंड अगर आपको सीरियसली समझना है और जानना है कि कैसे हम अपनी ग्रूमिंग एंड कैसे हम अपने बेसिक्स परफेक्ट कर सकते हैं टू अटेंड एनी इंटरव्यू इन हॉस्पिटलिटी सेक्टर, इट कुड बी एविएशन और इट कुड बी होटल्स. सो गाइज प्लीज स्टिक टू दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट. दीज बेसिक्स we have been doing and it has really worked for us. So please stick to this video. See you later. So guys, without wasting time, let's move to the video. And आपको पता ही as per norms of the Indians that girls first. So let's learn about how do girls do makeup. And seriously, जब मैं editing करने लगा था इसको तो बोला कि आप girls धन्य हो कि आप इतने steps follow करते हो. So please stick to this video and please learn guys, not girls. Sorry, पहले girls की है. Hey guys, my name is Neerja. Today I'm here to assist Vinayak. Today I'm going to show you guys how to dress well for your interview. Also, whatever things I'm sharing with you guys are the things which I have been practicing and which has worked for me. And also, just to put out there, I'm not a professional makeup artist. So please don't judge me accordingly, and hope you like the video. You can see I have literally tied my hair up and I have literally no makeup on my face. Also, I have cleansed my face and applied the moisturizer followed by lip balm to hydrate my skin before starting the makeup. Very first thing, I'm going to apply this primer. This is the Color Bar primer. After primer, I'm going to apply the foundation. I'm applying this Maybelline Fit Me foundation. You can apply any foundation which you use. Please don't forget your neck while applying the foundation. Nicely blended the foundation, and now I'm going to apply the concealer. Usually I use these two concealer. These are from Maybelline, and this one I specially use for under eyes. After concealer, I am going to use compact powder to set my base. Okay, so my base is ready. Now I'm moving towards my eyes. So first I'm going to apply eyebrow pencil. After that I'm going to apply eyeshadow. Now I'm going to apply eyeshadow. So I'm using this Wet n Wild eyeshadow palette. You can use any palette which you have. Firstly, I'm going to apply this brown shade on my outer corners, and then I'm going to use this little shimmery shade over here on my eyelids. After applying the brown eyeshadow, I'm going to apply this shimmery shade on my eyelids. I'm using this Lakme liner. ओके तो मैंने लाइनर और काजल दोनों लगा लिया है, बट थोड़ा इधर उधर चलता है, मिस्टेक्स होती रहती है. इट लुक्स डिसेंट. नाउ आई एम गोइंग टू कर्ल माई आई लैशेस एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई मस्कारा.
I'm using this mascara. Okay, I'm done with my eye makeup. As you can see, मैंने बहुत कम आई शेडो यूज़ किया है. Okay, now it's time to apply the blush. I'm using this Color Bar blush, as you can see. Like a bird on a tree. To complete my look, I'm going to apply lipstick. I'm using this sugar lipstick. The shade name is Aubergine Queen. You can use any red color. Okay, so I am done with the makeup and this is how I look with makeup. As you can see, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, especially eye makeup. You know, just because it should look minimum, मैंने decent makeup किया है. And yeah. One thing I would like to share with you guys is that you can follow your own steps while doing the makeup. It is not mandatory to follow my steps. And also आप अपना मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे ही प्रोडक्ट्स और मतलब मेरे ही ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करो. आप कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो. बट द बेसिक मेकअप लुक इज़ दिस, लाइक व्हाट आई हैव शोन यू नाउ. These are some things which I would suggest you to carry extra for your interview. Number one is stockings. Guys, you need to always carry stockings extra because you never know अगर कहीं फट गई तो. Number two is extra makeup because your open day is going to take a whole day, so it's better you carry extra makeup. Third thing is safety pin, bobby pins and extra hair net. Last but not least, don't forget to carry your hair wax, hair gel or your hair spray to secure your baby hair. टॉकिंग अबाउट हेयर, मैंने एक बन बांधा है एज यू कैन सी. सो मैंने हेयर नेट लगाया है टू सिक्योर माई हेयर. इट लुक्स नीट एंड प्रोफेशनल. एंड मैंने यहाँ पे हेयर वैक्स लगाया है, यू नो, सो ताकि मेरे बेबी हेयर्स थोड़े अच्छे से रहे. तो इट लुक्स नीट एज यू कैन सी. यू कैन ऑल्सो यूज़ सीरम और हेयर ऑयल to secure your baby hair. Talking about bag, you need to carry this kind of black tote bag, and I would suggest कि आप black color का ही bag carry करें because you know it suits your attire and you look more neat. Also for shoes, I would suggest कि आप black color का formal shoes होता है इस तरह जैसे वैसे आप heels carry कर सकते हैं या फिर पहन सकते हैं. And yeah, I would suggest कि वो आगे से close ही रहे. Okay guys, now you can see I'm completely dressed up. I'm wearing this formal shirt, also wearing the blazer. And guys, don't forget to wear watch. Even I am wearing the watch. Also I'm wearing the pearl white earrings. And for nail paint, I would suggest you to wear red nail paint or pearl white nail paint because you know it suits your attire. The length of your skirt needs to be 1 inch below your knee, and before going to any interview, please check the business attire of that particular airline. Guys, I hope you have learned a lot from Neerja. If still you have any questions regards to how to groom yourself while going into interview, you can drop the comments below. Hope you have understood it step by step. Will also help you out with all the sequence through which she did, so that it becomes more easy and more helpful for you. Now let's move to the guys section. So guys, let's talk about the men grooming. मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मैं करता आ रहा हूँ and seriously what interviewers expect in aviation interview or the hotels. Guys, the first on the list we have is hair. So guys, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मेक श्योर आपको कभी भी स्पाइक्स नहीं रखना. स्पाइक्स आर लिटरली नॉट अलाउड. प्लीज़ मेक श्योर कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज वी आर हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स. हमारे में ज़्यादा इमेज देखी जाती है आप कैसे बन के आते हो, हाउ यू कैरी योर सेल्फ. द सेकेंड वी हैव, हमें ध्यान रखना है कि हमारा जब भी हम कटिंग करवाएं हमारा स्कैल्प ये ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, मीन्स हमारा स्किन नहीं दिखना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. व्हेन आई वेंट फॉर एन लास्ट इंटरव्यू फॉर द इंटरनेशनल एयरवेज, देयर वाज अ गाय हु वाज एक्सपीरियंस्ड बट उसका स्किन दिख रहा था. उसने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए बट जब उसकी फोटोग्राफ सेंड करने की बारी आई ही वाज नॉट सिलेक्टेड. सो गाइस प्लीज़ मेक श्योर ऐसी कोई हरकत मत करना जिस पे आपको निकाला भी जा सके. सो गाइस, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
आई डोंट नो कि आपको पता हो या ना पता हो, आई हैव सीन वीडियोज़ में नहीं बताया जाता, प्लीज़ मेक श्योर। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि आपके जो बैक का आपका जो कॉलर है उसमें आपके बैक के हेयर टच नहीं होने चाहिए, आपके स्पेस होने चाहिए। दैट मेक्स यू मोर डिसेंट एंड मोर प्रोफेशनल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव, आपके बाल कभी भी ज़िंदगी में कलर्ड नहीं होने चाहिए। हम एज अ हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट जा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दीज थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट योर जॉब। नेक्स्ट वी हैव, वी नीड टू ट्रिम आर साइड लॉक्स। साइड लॉक से जो कलमे कहते हैं जिसे हम, राइट, तो ये हमें हाफ रखने होते हैं, जितना हमारा ईयर है उसका हाफ हमें कट करके जानी होती हैं। दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी दीज विल अफेक्ट योर जॉब। प्लीज़ अगर जा रहे हो तो पूरी तरह जाओ, नहीं तो मत जाओ। सो गाइस, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव आवर फेस, जिसके कारण हमें जॉब मिलती है और जिसके कारण हमें पैसे मिलते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर ये हमेशा ही सुंदर दिखना चाहिए। और जब भी आप शेव करते हो, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, तो शेव करके उसी दिन जाना है। ये नहीं कि आप 1 दिन या 2 दिन पहले करके जाओ एंड आप बाद में आप इंटरव्यू को गालियाँ दो कि यार मैंने तो शेव किया था एंड ही और शी वॉज स्पीकिंग लाइक दिस। तो आप ये नहीं बताते कि मैंने शेव कब किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10 बजे की इंटरव्यू है तो मेक श्योर आपका जितना भी ट्रैवल डिस्टेंस है उसके हिसाब से आप उसी दिन शेव करके जाएँ। अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा है तो मेक श्योर आप अपनी किट लेके जाएं, शेविंग किट, ठीक है। वहाँ पे जाके आप होटल में जाके, जहाँ भी इंटरव्यू आप जाके वहाँ पे कोट लगा सकते हो। एंड मेक श्योर आप, दूसरी बात, आईब्रोज को ध्यान रखिए। मैंने कई बार देखा है कि इट लुक्स वेरी अगली जब आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो यहाँ पे आईब्रोज में आपके ना नोज़ के ऊपर स्पेस होना चाहिए, आप थोड़ा सा ट्रिम करके रखिए, बिकॉज हम थोड़ा अगली नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं कि नेचुरल है तो सब कुछ आने दो, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना इसको ट्रिम करवाएं, यहाँ पे थ्रेडिंग करवा लें, कुछ भी करवा लें, मशीन मत मारिए। गाइस, नेक्स्ट वी हैव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमें अपने नेल्स हमेशा ट्रिम करने हैं, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ये प्लीज़ ध्यान रखिए क्योंकि वो हाथ बिल्कुल चेक करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मैनीक्योर भी करा सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। आपको ये भी सुना होगा कि वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन, नाउ मस्ट से दैट वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। यू कैन ऑल्सो फॉर मैनीक्योर करवा सकते हैं, पेडिक्योर करने की जरूरत नहीं है, पैर नहीं चेक होंगे, मैनीक्योर करवा लो आप, ताकि आपके हाथ बिल्कुल अच्छे हों। और इसको हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें, ड्राई हो जाते हैं हाथ या कुछ ना कुछ हो जाता है, सो काइंडली कीप इट मॉइस्चराइज। आप अपने पास मॉइस्चराइजर हमेशा कैरी करके रखें। बड़े लोग होते हैं कि यार मैंने बड़े फेसबुक पेज पे एडेड हूँ तो मैंने बड़ी बार देखा है कि गाइज कैन वी यूज़ द कंसीलर। गाइज, नो आर्टिफिशियल मेकअप इज अलाउड एंड इफ़ यू गो टू इंटरनेशनल एयरलाइन यू कैन नॉट बी फूल दैम, यू कैन नॉट मेक फूल आउट ऑफ दैम, बिकॉज वो आपके बाप हैं। जब भी वो आपको बुलाते हैं आप पहले ही बोल देते हैं कि प्लीज़ गाइज इफ़ यू आर कमिंग प्लीज़ मेक श्योर नो आर्टिफिशियल मेकअप, नो कंसीलर नीड्स टू बी एडेड। इफ़ वी सी इट वी विल आस्क यू टू रिमूव देयर एंड देन, एंड अगर उन्होंने बोल दिया तो वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर डू नॉट डू दीज थिंग्स एंड गाइज मेक श्योर नो एक्सेसरीज आर अलाउड इन एनी ऑफ द इंटरव्यू। व्हेन आई वेंट द लास्ट टाइम आई वॉज आस्क्ड टू रिमूव माई कड़ा एंड एक रिंग थी मेरे पास, वो भी मैंने निकाली हुई थी। मेरी कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं थी, वो मैंने बैंकॉक से ली थी व्हेन आई वाज फ्लाइंग विद जेट एयरवेज, तो मैंने खुद अपना नाम बनवा कर दी थी, वो भी उन्होंने कहा कि रिमूव करके आए। सो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट दिस वॉच एंड दिस अप्लाइज टू बोथ मैन एंड वुमेन। गाइस, जब आप वॉच खरीदने के लिए जाएंगे तो प्लीज़ मेक श्योर आपका जो डायल होता है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, इट शुड बी मिनिमम। एंड आप प्लीज़ डिजिटल वॉच कभी मत पहन के जाइए। कभी कैबिन क्रू हमेशा ही जिसका सेकंड एंड जिसके मिनट का आर्म होता है दैट इज़ द वॉच विच इज़ अलाउड, एंड जो भी कलर्स, जो भी डायल्स आपके कलर्स का अलाउड होता है वो मैं मेंशन कर दूंगा। See guys, usually glasses अलाउड नहीं होते, बट इन सम ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस इट इज़ क्वाइट अलाउड, एंड वो भी आप सिंपल फ्रेम बनाइए और सिंपल ग्लासेस। जॉब रियली एक्सपेक्ट यू टू बी सिंपल एंड प्रोफेशनल, सो प्लीज़ डू दैट। प्लीज़ कीप योर टीथ क्लीन एंड उसमें से अच्छी फ्रेगरेंस आनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप जाते हो आप एक च्युइंगम रखिए, सेंटर फ्रेश कोई भी च्युइंगम रखिए जिसकी फ्रेगरेंस अच्छी है। जैसे आप इंटरव्यू जाना है, आपको पता है मेरे 5-7 मिनट रह गए, तो जस्ट आप च्यू करके जाओ, उसके सामने नहीं खानी, च्यू करके आप जस्ट स्पिट करके आप वापस चले जाओ, सो दैट जब आप बोलो तो द फ्रेश एयर शुड कम आउट फ्रॉम योर माउथ। एंड गाइज, नेवर फॉरगेट टू स्माइल। यही हमारी जॉब है। अगर आप नाराज़ भी हो, अगर अपने वाइफ के साथ लड़े हो, अपने बच्चे के साथ लड़े हो, अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मार रहा, do the hell with that particular thing, just smile। इसी चीज़ के पैसे, अदरवाइज they will never ask you कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करिए। तो प्लीज़ मेक श्योर दीज थिंग्स।
Hey guys, so this is the way you need to dress up when you're going for any interview. My suggestion for you is that आपको एक business attire जो कि funky ना हो या कोई मैरिज के लिए आप यूज़ ना करते हो, वो ऐसा एक business attire अपने के लिए बनवा के रखें. आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप रेमंड का ले लें या इतना पैसा स्पेंड कर लें, सिंपल ब्रांड का स्पेंड करें, बट इट शुड लुक डिसेंट ऑन यू. मीन्स आप प्रोफेशनल लगें एंड दैट शुड बी अ पर्सनल बिजनेस अटायर. जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, भगवान करे आपको इतने इंटरव्यूज़ ना देनी पड़े, बट जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप एक बिजनेस अटायर अपना वही सिलेक्ट करके जाएं. गाइस, देयर आर सम प्रेफर्ड शर्ट कलर जो आपको उसी टाइम उस दिन पहनना होगा, एंड वो ये नहीं है कि आप वही कलर डालें. मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जो कलर्स मेनली चलते हैं. एक वाइट हो गया, एक ऑफ वाइट हो गया, एक लाइट ब्लू हो गया, लाइट पिंक हो गया, या आप ग्रे भी डाल सकते हैं. एंड प्लीज़ मेक श्योर आप जो ब्लेज़र डालते हैं वो मैच करना चाहिए. ब्लैक ट्राउज़र एंड ब्लैक ब्लेज़र डाल रहे हो तो मेक श्योर आपको मैच करना चाहिए. मैंने कभी कितनी बार लोगों को देखा है ब्लेज़र कोई और डाला होता है एंड ट्राउज़र कोई और डाला होता है. दैट रियली gives you unprofessional feeling, so please do not do that. Now let's talk about socks and shoes. Guys, shoes हमेशा सिंपल ही लेना. दो कलर चलते हैं, एक डार्क ब्राउन और एक ब्लैक. तो मैं कहता हूँ कि आप ब्लैक ही डालें. ब्लैक हमेशा के लिए कहते हैं सदाबहार कलर है. और अगर आप सॉक्स डाल दें तो प्लीज़ मेक श्योर जो आपका ट्राउज़र का कलर है वही उसका कलर होना चाहिए सॉक्स का. और आप सॉक्स एंकल नहीं डालनी. हम कोई स्पोर्ट्स या क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे या गेम खेलने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कोई इंटरव्यू के लिए, एंड आपकी स्किन नहीं दिखनी चाहिए प्लीज़. इट गिव्स अ वेरी अनटाइडी लुक. व्हेन वी टॉक अबाउट बेल्ट, बेल्ट आपकी वही कलर की होनी चाहिए जो आप शूज़ डालें. तो ये ना हो कि आपने शूज़ डाले हो ब्लैक कलर के, इसमें आपने डाला और ब्राउन कलर की, और आपने शूज़ डाले हो ब्राउन कलर के और बेल्ट डाली हो ब्लैक कलर की, वो बड़ा मिसमैच हो जाता है. प्लीज़ मेक श्योर आप बेल्ट वही लगाएंगे जो आपका शूज़ का कलर. गाइस, बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको लेकर क्या जाना है. गाइस, एक तो आपके पास एक फ़ाइल ये ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, और या आप एक बैग लेके जा सकते हो. जो लैपटॉप बैग्स आते हैं स्मॉल वो कैरी कर सकते हो. बट आई वुड रिकमेंड कि वैसे बैग ज़रूरत नहीं है. वी आर नॉट IT प्रोफेशनल जो हमें लैपटॉप लेके जाना होता है. मेरे हिसाब से वो ज़्यादा शोशा लगता है, बिकॉज एनी हाउ हम इंटरव्यूअर के पास जाते हैं, हम कोई बैग नहीं लेके जाते. तो इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस. एक फ़ाइल उठाओ, सीधा जाओ. एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ये चेक करेंगे आप में है क्या. एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द टाई. टाई एक लास्ट चीज़ बोली है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आखिरी चीज़ हमेशा याद रहती है. टाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी टाई ज़्यादा पतली ना हो. मेरी थोड़ी सी हल्की सी पतली है बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट आपको थोड़ी सी सही टाई चाहिए जो आपके पे सूट करे एंड इट शुड गिव गुड लुक. मेक श्योर जब आप यह बिजनेस अटायर बनवाते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि वहीं से टाई लीजिए, बिकॉज वो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है आपके साथ क्या मैच करेगा. गाइस, याद रखना कभी भी जब आप ट्राउज़र लेते हैं और बनवाते हैं, आजकल हमारी क्या आदत होती है, हम थोड़ा स्टाइलिश बनना चाहते हैं, तो स्टाइलिश के चक्कर में हम प्रोफेशनलिज्म खो देते हैं. तो ट्राउज़र कभी भी स्किन फिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी टांगों के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए. प्लीज़ याद रखना. Thank you so much for watching this video. I hope this video will assist you in your interviews, and I will see you in the next coming video with a useful topic. Till then, bye bye. Thank you so much. Take care. Sat Sri Akal.